Hello, everyone. Welcome back to another episode of Connect Conversations. Hope you all are doing well and keeping safe. Today, we have with us someone who is a firm believer in finding new avenues to help the community and spread joy and optimism. He is a serial entrepreneur, mentor, and seed investor. His company, Vision Group, is into investments, hospital management, incubation, publication, and skill development. Presently, he is the executive director with BNI Bhopal chapter, the state chairman for PhD, Chamber of Commerce and Industry Madhya Pradesh, chairman from Bhopal Management Association, council member with CII Madhya Pradesh, and president at TIE Madhya Pradesh. He has been honored as Pride of MP by Dainik Bhaskar Digital, Icon of Bhopal by Rajasthan Patrika, and Madhya Pradesh Ratna by MP Press Club. Recently, he has also been conferred with Business Leadership Award by Indian Achievers Forum. He has a rich experience in startup ecosystem of Madhya Pradesh. He is not only the founder of first private incubation center in the state, but also mentor and investor for various others. His incubation arm, VASPL Initiatives, is the regional partner with Venture Catalyst, India's largest angel investors network. So far, he has mentored over 20 startups and seed funded more than 10. A very warm welcome to Mr. Pradeep Karambelkar, Founder Director, Thank you, Vision madam. Investec Private Limited. Hello, sir. Thank you. Namaskar. Thank you, Welcome to Antara. MP Thank Connect. Thank you for being a Thank part you. of Connect Conversations. Thank you for giving this opportunity. Thank you. कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। आई होप आपके परिवार वाले और आप लोग सब अभी करंट टाइम्स में सेफ हैं और एकदम हेल्दी We are all safe. We are all Right. safe. Family safe. Thank you. Great. Okay, sir. So we will begin with talking about your VSPL initiative. आपकी parent company है Vision Investec. You know, you run multiple businesses under that. But this VSPL initiative is a very unique initiative, especially from a MP-based entrepreneur, and it is also currently running in the state. ऐसा भी नहीं कि मतलब प्रदेश के बाहर है. तो हमारे viewers को सर इस venture के बारे में बताएं थोड़ा. VASPL, मैं just थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। मैं बड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ एंटरप्रेन्योरल जर्नीज में लोगों के। जैसे मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और जो कुछ भगवान की ब्लेसिंग्स और बड़ों के आशीर्वाद से जो कुछ मिला मुझे, उसमें मुझे हमेशा लगता था कि हमको इकोसिस्टम में, एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। So in that regard, Right. I keep meeting entrepreneurs, young people, those who looking for something. और मैं ही सबसे अच्छे से समझ सकता था कि जैसे मैंने अपनी एक छोटी सी शुरुआत पोस्ट ऑफिस और LIC एजेंट के रूप में की थी, तो मुझे मालूम था कि किसी भी नए व्यक्ति को क्या क्या परेशानी आ सकती है और लगभग हर एंटरप्रेन्योर की कहानी एक जैसी रहती है। So, मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। So I keep doing. So मैं बहुत सारे लोगों से वैसे भी मिलता था और बहुत सारे लोगों के इसमें कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करने का प्रयास करता था। सडनली जनवरी 16 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की और स्टार्टअप की एक थॉट प्रोसेस हमारे यहाँ आ गई। हम चूंकि उस प्रोग्राम को करते ही थे, हम लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप में मदद करते ही थे, मेंटरिंग में मदद करते ही थे, तो हमने कहा चलिए इसको और एक्सटेंड करते हैं एंड वी स्टार्टेड दिस इंक्यूबेशन सेंटर, VASPL Initiatives Private Limited. That was in November 17. Madhya Pradesh government has given us a certificate to as a private incubation center. मुझे याद है, हाँ, CM के साथ तो हमको नवंबर 2017 में ये सर्टिफिकेट मिला था और वहां से हमारी जर्नी जारी हुई। और किसी भी इन्वेस्टर, किसी भी नए व्यक्ति को स्टार्टअप डेफिनेशन की अगर आप बात करें, तो अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं प्योरली स्टार्टअप इन्वेस्टर या मेंटर नहीं हूँ। मैं अपने आप को कैटेगराइज करता हूँ फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप में। मतलब मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जो जो आता है, मैं कोशिश करता हूँ मैं उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकूँ, whether it is mentoring, whether it is small fund, seed funding, और next level is because we believe that अगर आपको क्लाइंट से पैसा मिलने लगे, मतलब आपने जो भी कुछ नया सोचा है, जो भी कुछ नया करना चाहते हैं, अगर उसको क्लाइंट पैसा देने लगे, then you don't require any funds from the outside, right? True. Your business is self-sustainable. So I believe that somebody who starts, he should have a sustainable business model for long term and he can expand it well. तो स्टार्टअप की डेफिनेशन में जो तीन चीजें आती हैं, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। सो बिल्कुल अगर बहुत निश उसका इनोवेटिव आइडिया न भी हो, तो भी हम उसके साथ मेंटरिंग, सीड फंडिंग और बिजनेस डेवलपमेंट का काम करते हैं। सो दैट व्हाट हैपेंस। और उसके साथ जो बड़ी हुई चीजें हैं, जैसे लीगल हुआ, टैक्सेशन हुआ, जो भी बुक्स कीपिंग हुई, इन सभी चीजों को हम इस इंक्यूबेशन में प्रोवाइड करते हैं।
सो दैट एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम उनकी रिस्क को तो कम नहीं करते, बट उसकी रिस्क को हम थोड़ा सा बैलेंस करने की, या जिसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क करने की कोशिश करते हैं कि जब कोई Right. नया व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है या करता है, तो जो उसकी रिस्क की कैपेसिटी है उसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं कि उसकी रिस्क में वो नेकेड रिस्क में ना चला जाए, वो कैलकुलेटेड रिस्क में बना रहे, ये हमारी कोशिश रहती है। और वो जो अपना काम करना चाहता है वो कर सकता है। मुझे मालूम है अपने एक्सपीरियंस से कि उस व्यक्ति को थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी मेंटरिंग और थोड़ा सा बिजनेस डेवलपमेंट लगेगा, दैट वी ट्राई टू डू। और हमारी तरफ से कोशिश होती है कि अगर किसी स्टार्टअप को किसी बिजनेस में, गवर्नमेंट के किसी टेंडर में या किसी बड़े ऑर्डर में कहीं पर हमारे नाम की जरूरत होती है, so we take that and we forward it to sublet it to the startup, so that what happens, उनके भी businesses शुरू हो जाते हैं। so fortunately Right. बहुत सारे स्टार्टअप, चाहे डॉक्टर अनंत का फिजियो क्योर हो या फिजी क्योर हो, या आज की डेट में योगेश साहू जी की फ्रेंड हो, या कुमार संभव का वाओ वर्ल्ड हो, या अंकित गुप्ता का ब्रेन सीडर हो, ये सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। और इन्होंने अपने अंडर में, इनके पास अगर आप टोटल जोड़ लगाएंगे तो 100-125 से ज्यादा इनके पास एम्प्लॉइज भी हैं। So we develop basically, and I invest time and money in Right. entrepreneurs. I invest money on people. Not Right. may not be very good on concept. Sometimes Right. concept उनका थोड़ा सा शेप ले रहा होता है, बिल्कुल। बट हम कोशिश करते हैं कि अगर हम उनके एंटरप्रेन्योरल जर्नी में कहीं जुड़ सके, so that is our initiative. That is not an initiative. Basically, it's my liking how to empower the new and young entrepreneurs. वंडरफुल वंडरफुल सर। सर, हमने कहीं पे पढ़ा था कि आप मतलब VSPL या विजन इन्वेस्टेक इन जनरल, यू आर ट्राइंग टू डेवलप इट एज अ वन विंडो फॉर कंपनीज विशिंग टू एक्सपैंड इन मध्य प्रदेश। वन विंडो से मैंने वो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में शायद लिखा हुआ है मेरे। राइट। ऐसा तो मेरा, सर मैं वही जानना चाह रही थी कि व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली बाय दैट। मतलब अगर हम बात करें कि देश के अलग अलग राज्यों में या शहरों में कोई ऐसे बिजनेसेस हैं वो लुकिंग टू एक्सपैंड देयर बेस इन MP, तो क्या आप उसको किसी तरह का इंसाइट, किसी तरह का सपोर्ट, किसी तरह का इनिशिएटिव ऑफर करेंगे? मतलब क्या रहेगा सर उसके अंडर, उस फिलॉसफी? देखिए, मेरा ऐसा सोच था, दिस इज अ नेक्स्ट लेवल वेयर, सो वी हैव डेवलप्ड ए नेटवर्क इन मध्य प्रदेश। जैसे इन्वेस्टमेंट अगर कैटेगरी में देखें तो हम लगभग 30,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को सर्व करते हैं। उसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बिजनेस में हम लगभग 25 से 30,000, 40,000 पेशेंट्स को पर डे विभिन्न 30-40 जगहों पर, जिलों में और सिविल जगहों पर सर्व करते हैं। तो एक स्टैब्लिश नेटवर्क है जहां पर आईटी को जानने वाले लोग, और जहां पर ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध। करेक्ट। और मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो बाहर की कंपनियां आना चाहती हैं, दिल्ली, बॉम्बे या बाहर से कहीं से, बेंगलोर से या कहीं से भी, तो उनको कहीं ना कहीं एक नेटवर्क की जरूरत होती है। हम ये मानते हैं कि आज की दुनिया ऑनलाइन होती जा रही है, लेकिन कभी भी हम ये मान के न चलें कि ये पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी, राइट? तो ब्रिक एंड मोटर मॉडल जो है, जो हमेशा जो काम करता है, वो खत्म नहीं हो रहा है, वो बना रहेगा। और आने वाले समय में भी अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें, तो इन सभी कंपनियों को कोई ऐसे नेटवर्क्स की जरूरत पड़ेगी जो पहले से एस्टैब्लिश्ड, जहां पर हर जगह पर लोग उपलब्ध हैं, जहां पर एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। और जैसे मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर BNI भी हूँ, तो भोपाल में 150-200 लोगों का अभी वर्तमान में एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरल ग्रुप है, जिसको आप बहुत अच्छा एक ट्रस्टेड वेंडर ग्रुप कह सकते हैं, जो किसी भी काम को एग्जीक्यूट कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे नेटवर्क का हमने निर्माण किया है विभिन्न जगहों पर। जैसे आपने पहले बताया मेरे प्रोफाइल में कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी मैं आता हूँ। कारण क्या होता है कि एक इस तरह का एक नेटवर्क स्वयं का बन जाता है, जिसमें आप बहुत सारी कंपनीज को और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, अगर वो मध्य प्रदेश में कुछ करना चाहते हैं, सरकारी लेवल पे भी, ग्राउंड लेवल पे भी। सो मैंने ऐसा सोचा है कि इस विजन नेटवर्क को हम किस तरह से नेक्स्ट लेवल पर एक्सप्लोर करें, ताकि वो कंपनियां, प्रोडक्ट, सर्विसेज, विशेष तौर पे सर्विसेज, प्रोडक्ट्स किस तरह से अपना एक्सपेंशन MP में कर सके। MP काफी बड़ा स्टेट है और बहुत सारे लोग, जिस तरह से MP ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से MP में अपॉर्चुनिटीज हैं, मुझे लगता है कि हम उसमें उनके लिए मददगार हो सकते हैं। So we have everything. We have network, we have professionals, we have legal professionals, we have tax professionals, we have everything in house. So why not to provide the same services to other companies who wants to expand in Madhya Pradesh? True. Okay, got it, sir.
अंडरस्टूड। तो सर जैसे हम तो अभी जैसे फॉर बात, एग्जांपल मैं आपको और आसानी से बोलूं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है वो मध्य प्रदेश में अपना ऑफिस बनाना चाहती है, जी बिल्कुल आपको बेसिक एग्जांपल में बताना चाहूँ, तो अगर वो चाहती है कि इस मध्य प्रदेश में अपना ऑफिस बनाना चाहे या शुरुआत करना चाहे एक साल में, तो किसी एम्प्लॉय को रोकेगी, एक या दो एम्प्लॉयज को रोकेगी, उसको ऑफिस सेटअप देगी, फिर वो 6 महीने काम करेगा, उस दौरान वो अगर काम करता रहे तो अच्छी बात है। सो कंपनी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम एंड प्लेस एट वन स्टेट। वही चीज अगर आपको स्टैब्लिश, ना तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, वी कैन वर्क ऑन रिटेनरशिप और फीस बेसिस, वेयर we can always offer our services to these people who are looking for the network businesses in this state, and we can ओके connect them to the various customers जिनको वो ढूंढ रहे हैं, so we can help out those people who are करेक्ट, looking for Madhya Pradesh as well. ओके ओके अंडरस्टूड, करेक्ट, ठीक है। सो सर जैसे अभी हम आपके वही मल्टीपल बिजनेसेस की ही बात हो रही है, विजन इन्वेस्टेक की, आप लोग का जैसा भी मेंशन हुआ प्रीवियसली कि इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज, अभी आपने बताया। तो मैं व्यूअर्स को सर सेवा के बारे में बताइए, आपका पेशेंट एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है। ये और एक बड़ा ही रिसेंटली सर जैसे अभी हम 2 साल से देख रहे हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक से सभी हम जूझ रहे हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट में क्या रोल प्ले किया सेवा ने, आप लोगों ने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए इसके तहत, थोड़ा इसकी जानकारी दीजिए हमें। सेवा इस बड़ा एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। जी सर। 2011-12 में मेरे एक साथी हैं यजीद वैष्णव, हम दोनों एक दूसरे से दोस्त थे, एंड सो जनरली अगर आप थोड़ा सा, मैं 1 मिनट लूंगा, जब आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं या किसी भी जगह पर जाते हैं, तो जनरली इन 3 लोगों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। पहला हार्डवेयर वाला, दूसरा सॉफ्टवेयर राइट, वाला, और तीसरा ह्यूमन रिसोर्स वाला। ठीक है, गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन आज की डेट में इन तीनों अलग अलग वेंडरों से रिसोर्स करता है, और अगर इनका सिंक्रोनाइज नहीं होता तो अल्टीमेटली पेशेंट को ये फैसिलिटी मिलती नहीं, क्योंकि हार्डवेयर वाले का कभी सॉफ्टवेयर वाले कंफर्टेबल नहीं होता, कभी ह्यूमन रिसोर्स ट्रेंड नहीं होता, कभी वो छुट्टी पे रहता है। सो व्हाट वी हैव ऑफर्ड टू द वेरियस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स कि व्हाई डोंट यू गिव अस द होल थिंग, from AMC to paper to everything, to human resource to software to hardware and networking, everything we will take care, and we keep improvising it। मतलब आज तो हम टोकन सिस्टम से लेकर सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग सब पे आ चुके हैं, ओके तो हम एक पूरा डिजिटल सोल्यूशन ओके सरकार को उसके अस्पताल को चलाने के लिए देते हैं। सो इट्स अ दैट्स व्हाट वी, पर हमारी अंडर जो इंटरनल फीलिंग थी मेरी और मेरे साथी की, वो एम्पैथी थी। हम ये चाहते थे कि इसकी शुरुआत छोटे शहरों से की जाए, क्योंकि छोटा शहर, छोटा कस्बा, छोटा जिला कभी भी डिजिटल पेशेंट बिल्कुल रिकॉर्ड सिस्टम के बारे में नहीं सोच सकता। बड़े शहर तो फिर भी सोच सकते हैं, जी छोटे कभी नहीं, मुरैना, भिंड, राजगढ़ ये कभी नहीं सोच पाएंगे। और हमने उन शहरों से इसकी शुरुआत की, इसलिए वो थॉट प्रोसेस चूंकि सेवा थी, इसलिए उस सेक्टर का नाम हमने सेवा कर दिया। सो इट्स लाइक अ ब्रांड नेम ऑफ दैट बिजनेस विच वी बिलीव। हमारे सारे 200 से 250 लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं, वो जी इसी एम्पैथी से काम करते हैं कि वी हैव टू सर्व पीपल, वी हैव राइट टू सर्व पीपल फर्स्ट। सो ठीक है, डिजिटाइजेशन अपनी जगह है, हम पेशेंट्स के सभी रिकॉर्ड को कलेक्ट करते हैं और एक सेंट्रलाइज प्लेस पे उसको करते हैं। आने वाले समय में पेशेंट्स का सारा डेटा उसके मोबाइल या आधार कार्ड से प्राप्त हो सकेगा कि उसने पीछे क्या किया है। सारा डेटा आपको पिछले 8 साल का विभिन्न जगहों का प्राप्त होगा जहां जहां हम काम कर रहे हैं, तो सरकार भी इसमें काम कर रही है। सो दैट्स व्हाट सेवा इज। और अभी कोविड में भी हमारा रोल जी तो वही था। पेशेंट्स की संख्या कम हो गई थी, सरकार ने बहुत तकलीफें भी हुई, कोई डाउट नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हम कोई स्वास्थ्य कर्मियों में भी नहीं आते हैं। बिल्कुल सो नेचुरली जो एम्प्लॉई हैं, खासतौर पे फीमेल एम्प्लॉइज हैं, उनको आने के लिए उनके परिवार वाले मना करते हैं। तो ऐसी जी स्थिति में आप खुद भी सोचिए, अगर आप कोविड अस्पताल में ड्यूटी लगी हुई है आपकी, तो कहीं ना कहीं घर से एक रेजिस्टेंस आता है कि आप बिल्कुल क्यों जा रहे हैं। या जैसे जो आसपास के, जैसे मैं बैतूल की बात करूं, तो बैतूल से बहुत सारे लोग मुल्तई से बैतूल आते थे। अब अच्छा वो बस ही बंद हो गई तो आएंगे कैसे। सो वी हैव टू टेकन अप, हमको एक फ्लैट लेना पड़ा बैतूल में और एम्प्लॉय को रखने के लिए, ताकि वो रोज अस्पताल अटेंड कर सके। सो लॉट मेनी सच परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमको बनाने पड़े। हार्डवेयर खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए या इंक खत्म हो जाए, फिर सो ट्रांसपोर्टेशन बंद था। हम उस सामान को कैसे पहुंचाएं इन विभिन्न जगहों पर, क्योंकि हम लगभग 40 विभिन्न जगहों पर हैं। उन सब जगहों पे ये जो बेसिक सप्लाई चेन थी, इसके लिए भी हमें राइट काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि औसतन सब बंद था। बिल्कुल क्योंकि एक तरफ तो मृत्यु का भय, सबसे बड़ी बात, एक तो मृत्यु का भय, किसी को भी ये कहना कि तुम ऐसा करो, तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है ना कि यार पता नहीं कल को कुछ हो जाए। सही बात सो
फैमिली कैन ऑलवेज से कि देखिए आपके ऑफिस के काम के कारण कुछ हो गया, सो वी हैव टू मैनेज बोथ द थिंग्स. Correct. We have to run these things and we have to, because we are the main people who are facing the customer at the front. Correct. जब कस्टमर आता है, पेशेंट आता है अस्पताल में, तो सबसे पहले उसका साक्षात्कार हमारे बच्चों से विंडो पे होता है जो उनका नाम एंटर करते हैं. Right. और उसके बाद फिर वो मूवमेंट आगे बढ़ता है. सो इन दैट वे इट वाज अ टफ टाइम. फाइनेंशियली ऑल्सो इट्स अ टफ टाइम बिकॉज पेशेंट्स की संख्या कम हो गई और हमारे फाइनेंशियल मॉडल में हमारी रेवेन्यू उनकी संख्या पर डिपेंडेंट है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा उसमें भी तकलीफ हुई. लेकिन यस, ब्लेसिंग्स चल रही है, जब तक है सब अच्छा है, वो सेवा है और वो जारी रहेगी और हमारा वो नेटवर्क बढ़ता जा रहा है. वी आर प्लानिंग टू मूव टू अदर स्टेट्स आल्सो. So we are looking for new expansion partners who can take us to the nearby states also. Correct. Wonderful, sir. Wonderful. Sir, now moving on to your professional roles, in the sense you have multifaceted roles in organizations like BNI, BMA, PhD Chamber of Commerce, CII, and various others. So, can you tell us briefly, like, कि ये organizations क्या role play करते हैं, especially when it comes to economic and professional development of state of Madhya Pradesh? If we talk about that, क्या रोल प्ले करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट? देखिए, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन एक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ बने. अगर मैं बात करूं तो सीआईआई और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक कैटेगरी के लोग हैं, है ना. इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव पॉलिसी एडवोकेसी, अर्थात गवर्नमेंट की विभिन्न पॉलिसीज में इंडस्ट्री का जो इंटरफेस है या थॉट प्रोसेस है उसको सरकार तक पहुंचाना, और सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनको इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना, और उनके बीच में एक बीच का जो जिसको कहते हैं, आई एम नॉट से मीडिएटर, बट एक वो प्लेटफॉर्म देना जिस पर ये दोनों लोग आ सकें, हितग्राही और सरकार. सो एक तरफ से इंडस्ट्री, तो पीएचडी चैम्बर और सीआईआई की दोनों की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका ये पॉलिसी एडवोकेसी होती है. उसके अलावा वो सरकार की बहुत सारी चीजों में मदद करते हैं. इंडस्ट्रीज की बहुत सारी डिमांड जो समय के साथ आती हैं, और सरकार भी इन चैम्बर्स के थ्रू इंडस्ट्रीज को संपर्क करती है. अब इसमें अलग अलग लेवल है. लोकल, जैसे भोपाल की बात करें तो मंडी ड्यूक एसोसिएशन, गोविंदपुरा एसोसिएशन, लोकल इंडस्ट्री एसोसिएशन. तो इनकी प्रॉब्लम अलग होगी. इनकी प्रॉब्लम क्या होगी, हमारे एरिया में लाइट नहीं आती, सड़क खराब है, पानी की. सो दिस इज द लोकल प्रॉब्लम्स व्हिच दीस लोकल एसोसिएशंस. CII and PhD chamber, or CII especially or PhD chamber, they work on macro also. How should be the budget should be there. Now state budget local मंडीदीप एसोसिएशन को बहुत इंटरेस्ट नहीं होगा, बट CII और PhD अपना उसमें कंट्रीब्यूशन करेगा when government asks कि what industry wants from the government in this budget. So macro economics level पर CII या PhD जैसे ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं. जो बाकी के ऑर्गेनाइजेशन जैसे TI, द इंडस एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योरशिप, फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप पर काम करता है अक्रॉस द ग्लोब. बीएमए लोकल एसोसिएशन है, भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन, व्हिच इज ओनली इनटू मैनेजमेंट. तो इन सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव और विजन और मिशन डिफाइंड है. और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेटली कलेक्टिवली ये सारे लोग इकोसिस्टम को ही बढ़ाते हैं, क्योंकि एक अगर पॉलिसी एडवोकेसी को बढ़ा रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है, तो उस अवेयरनेस को आगे टेक अवे करने के लिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसको आगे बढ़ाते हैं. सो ये सब आपस में इंटरमिक्स हैं, लेकिन सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव है, और अल्टीमेटली इन सबका गोल एक ही है कि हम अपने इकोसिस्टम को, इकोनॉमी के इकोसिस्टम को प्रदेश के और देश के आगे बढ़ा सकें. अंडरस्टूड सर. सर, लास्टली बिफोर वी लीव यू, हम जानना चाहेंगे कि आपका ऐसा क्या ऑब्जर्वेशन या कमेंट है व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज. आप किस तरह की अपॉर्चुनिटीज या ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग इन मध्य प्रदेश? इनके फ्यूचर को अगर हम देखें उस हिसाब से आपका कमेंट या ऑब्जर्वेशन सर आपका. वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन. और उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत समय. मतलब एक तो सबसे अच्छी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, माने जब मैं पढ़ता था या मैं जब छोटा यंग था, तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारे समाज का एक बहुत फेवरेट हिस्सा नहीं है. हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग आज भी जॉब करना चाहते हैं. जी जी जी. और ज्यादातर लोग, पेरेंट्स भी कहेंगे जॉब कर लो, पढ़ाई कर लो, जॉब कर लो, पढ़ाई कर लो, फला कैंपस में चले जाओ. तो एक तो सबसे बड़ा चेंज आया है पिछले 2-4-5 सालों में कि लोग खुद का कुछ करना चाहते हैं.
तो ये जो माइंड सेट में चेंज आया है मध्य प्रदेश में, जो विशेष तौर पे देख रहा हूँ मैं, मैक्सिमम बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं, जब मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के फंक्शन में भी जाता हूँ, तो वहाँ पे भी यंगस्टर से जब पूछता हूँ हाउ मेनी वांट्स टू डू देयर ओन बिजनेस, तो मुझे खुशी होती है कि 25-30% लोग करीब हाथ खड़ा करते हैं। एंड दैट्स वेरी वेरी गुड चेंज। और आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन के कारण है कि जी, हम कहीं भी बैठे हों, हम ग्लोबल हो गए हैं। आप करेक्ट, कहाँ बैठे हैं मुझे नहीं मालूम, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, और सारी दुनिया जिसको कहते हैं ना मुट्ठी में, वो इस टेक्नोलॉजी ने कर दिया है। सो यंगस्टर्स के लिए करेक्ट, तो इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। एक जी, तो हम यंग हैं, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे साथ है एज ए कंट्री, और दूसरा हम टेक्नोलॉजी से भी हैं। हमारी पूरी यूथ, सारी जनरेशन सोशल मीडिया, इस टेक्नोलॉजी से बहुत अधिक अभ्यस्त है। मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत वर्ल्ड ओवर में अपनी ट्रस्ट को बढ़ा रहा है, जिस तरह से हमारे लोग दुनिया भर में ट्रस्ट वर्दी माने जा रहे हैं, जिस तरह से भारत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में डेवलप हुआ है, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और आप इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश के लोग जी, ज्यादातर बाहर के स्टेट्स के ऑपरेशनल पार्टनर्स हैं। मतलब आप देखिएगा, आपको मध्य करेक्ट, प्रदेश का लड़का हर स्टेट में मिलेगा, करेक्ट, बेंगलोर, बम्बई, दिल्ली, और हर बड़ी कंपनियों में मिलेगा। इसका बिल्कुल, मतलब है कि हमारे लोग काफी कैपेबल हैं, और अब वो लोग भी चाहते हैं कि वापस अपने स्टेट में आए। मेरे साथ बिल्कुल भी, सर, मेरी साथ के भी लोग चाहते हैं कि वापस स्टेट में आए। तो मुझे लगता है इमेंस अपॉर्चुनिटी है। और जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि जिस तरह से आपका लॉजिस्टिक्स में, जिस तरह से फूड प्रोसेसिंग में, और जिस तरह से इन सब इंडस्ट्रीज में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं टूरिज्म में, मुझे लगता है एम्पल अपॉर्चुनिटी है। वी कैन ऑल्सो बी द स्टेट, अगर हम ध्यान से इसको डेवलप करें, सो वी कैन ऑल्सो बी अ वेरी, जिसको कहते हैं आईटी इंडस्ट्री का हब हो सकता है। ये भी करेक्ट, एक नया सिलिकॉन वैली बन सकता है आने वाले समय में, अगले 10-15 सालों में, अगर हम इसको एक फोकस्ड एरिया में काम करें। सो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश। हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, यंगस्टर्स हैं। सो आई थिंक 27 साल की एज का हमारा मध्य प्रदेश जो एवरेज एज है हमारी, जी, वी हैव इमेंस अपॉर्चुनिटी। और आने वाला समय पिछले 10 साल से बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता ओके, करेक्ट सर, हम भी उसी चीज के लिए काफी होपफुल हैं। वी वांट टू सी मध्य प्रदेश ऑन द नेशनल मैप एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। सो धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड सिटिंग है। एंड शेयरिंग योर थैंक यू थॉट्स अनुराग। विद अस। बहुत ही बढ़िया इंसाइट्स रहे सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू अंतरा, थैंक यू थैंक सो यू, मच। Thank you to थैंक all our यू। viewers who joined us. We will see you in our next conversation. Thank you.